topic of today's discussion is actually the role of theory, but before we discuss the role of theory in research, why is theory significant, last lecture में अभी हमने जो है वो डिस्कस किया था कि ladder of abstraction क्या होता है, theory की definition क्या है, concepts क्या होते हैं. हमने ये भी डिस्कस किया था कि 2 से 3 concepts जब मिलते हैं तब theory जो है उसको आप create कर सकते हैं. In today's lecture I am going to define first what is the concept of propositions, and then we are going to discuss the concepts related to theory and research. Proposition की जब हम बात करते हैं तो it simply means in layman's language something which you are proposing. आप कोई चीज़ propose करें कि for example some phenomena is existing, something can happen or something can not happen, something is happening on based on some concepts, some variables. कुछ ऐसे concepts की जब हम बात करते हैं उनको जब आप यूज़ करते theory बनाते हैं और concept increase किसी concept का जो है वो utilization during a process or something which is happening, जो चीज़ increase या decrease कर रही होती है ऐसे concepts का variable कहते हैं, जो चीज़ vary कर रही होती है. ठीक है. Preposition ओके proposition की जब आप बात कर रहे हैं तो उससे पहले आई एम गोइंग टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट. Concepts are the basic unit of theory development. However, theories require an understanding of the relationship among concepts. Different जो concepts होते हैं उनका relationship को आप theory कहते हैं. Thus, one reality is abstracted into concept. The scientist is interested in the relationship among various concepts. अच्छा जी, इसी तरह से जो propositions होते हैं are statements concerned with the logical relationship among concepts. Proposition explains the logical linkage among certain concepts by assisting a universal connection between these concepts. अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब रियलिटी आपने अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से जो है इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि जो कौवे हैं दे आर वेरी एक्टिव इन द डे टाइम. ठीक है. अब कौवों की एक्टिविटी इज़ वन कॉन्सेप्ट और डे टाइम और मॉर्निंग टाइम इज़ अनदर कॉन्सेप्ट. इन 2 कॉन्सेप्ट्स का रिलेशनशिप आपने पहली स्टेटमेंट के अंदर प्रपोज कर दिया. दूसरा आपने प्रोपोजिशन ये दिया कि रात के टाइम कौवे इतने एक्टिव नहीं होते, उनकी एक्टिविटी इज़ वन कॉन्सेप्ट और रात के टाइम इज़ अनदर कॉन्सेप्ट. तीसरी आपने स्टेटमेंट ये दे दी कि कौवे दिन में एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपना खाना तलाश कर रहे होते हैं. सही है. तो ये जो है इसके अंदर खाना, दिन का टाइम और एक्टिविटी, ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं. अब ये 3 जो प्रोपोजिशंस आ गए हैं ये मिलके थ्योरी को बनाते हैं. इस प्रोपोजिशन को ट्रू या फॉल्स करते हुए, इसके ऊपर रिसर्च करते हुए, इसको टेस्टिफाई करते हुए आप जो है यू मेक अ थ्योरी which can be tested or which can not be which can be proved to be true or which can be proved to be untrue in the later part. Theory is an abstraction from observed reality. Concepts are at one level of abstraction. Investigating proposition requires that we increase our level of abstract thinking. When we think about theories, we are at the highest level of abstraction because we are investigating the relationship between propositions. Theory is a network of proposition. For example, सबसे पहले आपने observation of objects and events बताया. जैसे मैंने वो आपको कौवों वाली एग्जांपल दी, उसमें आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लिस्ट किए. दूसरी चीज़ उसमें आपने प्रोपोजिशन बनाया, डिफरेंट जो प्रोपोजिशंस बना दी, स्टेटमेंट्स बना दी, वो इकट्ठी एमलगमेट होके मिलके जो है वो थ्योरी बनाती हैं. अच्छा जी, फिर आपके पास थ्योरी एंड रिसर्च. बेसिकली क्या होता है कि थ्योरी एंड रिसर्च आर बेसिक टू मॉडर्न साइंस and due to the modern science it is integrate relationship between theory and research. Theory and research are connected, interconnected, म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. इनको आप सेपरेटली नहीं देख सकते. थ्योरी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर डूइंग रिसर्च. फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो यू डू अंडरस्टैंड कि जो है वो इन ऑर्डर टू प्रूव अ स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू राइट डाउन समथिंग, यू नीड द बैकिंग ऑफ थ्योरी कि इसके ऊपर कोई थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म है, आइडियलिज्म है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव है. सो ये डिफरेंट जब आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, फैक्ट्स को आप लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं, यू टेक हिंट फ्रॉम दीज थ्योरीज और ये आपको टेस्टिफाई करने में, उस ऑब्जर्वेबल रियलिटी को या डी टेस्टिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. पॉपुलर ओपिनियन जनरली कंसीव्स ऑफ दीज एज डायरेक्ट ऑपोजिट. कुछ लोग या कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं. थ्योरी इज कन्फ्यूज विद स्पेकुलेशन, कि आप स्पेकुलेट कर रहे होते हैं, आप मशकूक हो रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में शक कर रहे होते हैं. एंड दस theory remains speculation until it is proved. When this proof is made, theory becomes fact.
तो वो कहते हैं कि थेरी को जो है तब तक स्पेकुलेशन लेती है जब तक आप उसको टेस्टिफाई करके प्रूव नहीं कर देते। जब थेरी प्रूव हो जाती है तो वो फैक्ट बन जाती है, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बन जाती है। Facts are thought to be definite, certain, without question, and their meaning to be is considered to be self-evident. When we look at what scientists actually do when engaged in research, it becomes clear that number one, the theory and facts are not diametrically opposite, but are intertwined, are interconnected. Number two, the theory is not speculation. कि theory सिर्फ मशकूक होने का या किसी चीज़ के ऊपर शक करने का नाम नहीं है। तीसरी चीज़ जो है आपके पास हुए कि द साइंटिस्ट आर वेरी मच कंसर्न विद बोथ थेरी एंड फैक्ट, और उसको आप जो है वो रिसर्च के अंदर एक सिग्निफिकेंट पार्ट कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास थ्योरेटिकल बैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। थेरी एंड फैक्ट गो हैंड इन हैंड एंड दे आर द प्री रिक्विजिट्स एंड दे आर वेरी एसेंशियल फॉर कंडक्टिंग अ गुड रिसर्च स्टडी। ठीक है, research hence research produces facts and from facts we can generate theories। अब likewise procedure है, ठीक है, जो जब आप रिसर्च कर रहे हैं एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, आपने जो रिसर्च किया उससे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आया है, उस फैक्ट्स को जब आप जो है वो यूटिलाइज करते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप थेरी बना सकते हैं। ठीक है, theories are considered to be soft mental images, whereas research covers the empirical world of hard settled and observable thing। अब theory जो है it is based on concepts वो ideas हैं जो आपके दिमाग के अंदर हैं, 2 से 3 concepts मिलकर एक theory बनाते हैं। ये soft mental image है about some reality जिसको आपने identify किया, जिसको आपने नाम दे दिया उस एक particular concept का। रिसर्च के बारे में कहा यह जाता है कि एम्पेरिकल वर्ल्ड ऑफ हार्ड सेटल्ड एंड ऑब्जर्वेबल थिंग्स है। ये वो चीज़ें हैं जो आप डे टू डे एक्सपीरियंस से, हार्ड सेटल्ड चीज़ है, टेंजिबल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस तरह से जो थेरी और फैक्ट है दे कंट्रीब्यूट लार्जली टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ गुड रिसर्च। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप। अब थेरी का जो रोल है वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या है थेरी और रिसर्च का क्या रिलेशनशिप है, और उसके बाद थेरी का रोल हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो मूविंग ऑन, अच्छा जी, रोल ऑफ थेरी की जब हम बात कर रहे हैं तो थेरी का रोल क्या है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थेरी जो है it is said to be an orientation point. A major function of a theoretical system is that it narrows the range of facts to be studied, and phenomenon or object may be studied in many different ways. A football, for example, can be investigated within an economic framework as we ascertain the patterns of demand and supply relating to this play object. It may also be the object of chemical research, for it is made of organic chemicals. It has a mass and may be studied as physical object undergoing different stresses and attaining certain velocities under various conditions. It may also be seen as the center of many sociologically interesting activities, for example, playing, communication, group organization, etc. Each science and each specialization within a broader field abstracts from reality, keeping its attention upon a few aspects of given phenomena rather than all aspects. The broad orientation of each field that focuses upon limited range of things while ignoring or making assumptions about others. So theory जो है ये एक orientation point provide करती है in order to develop a theoretical system. For example, football की उन्होंने example दी, तो फुटबॉल को जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर, तो उसका जो पैटर्न होगा वो आप डिमांड और सप्लाई का देखेंगे कि कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप उसकी केमिकल रिसर्च करेंगे फुटबॉल से रिलेटेड, तो आप उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, उसके ऊपर जो चीज़ लगती है वो देखते हैं। इसी तरह से अगर आप उसको फिज़िकल ऑब्जेक्ट के तौर पे रिसर्च करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि कितना वज़न बर्दाश्त कर सकता है, कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, इसकी स्पीड क्या है, किस एंगल पे फेंकेंगे तो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, गर्मियों में फुटबॉल की क्या कंडीशन है, सर्दियों में फुटबॉल की कंडीशन है। इट मे ऑल्सो बी सीन एज द सेंटर ऑफ सोशोलॉजिकल इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। कहाँ कहाँ फुटबॉल यूज़ होता है, खेलने के लिए इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को जब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, डिफरेंट उसके ऊपर जो है वो फ्रेमवर्क्स लगा के देखते हैं, तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिफरेंट थेरीज़ हैं,
केमिस्ट्री से, फिज़िक्स से रिलेटेड डिफरेंट थेरीज़ हैं, सोशियोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट थेरीज़ हैं। इसी तरह से थेरी जो सेकंड पॉइंट है इसका कि थेरी इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट जहाँ पे आप कंसेप्चुलाइजेशन और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हर साइंस के अंदर देखिए ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट्स विद रेफर टू मेजर प्रोसेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स टू बी स्टडीड. It is the relationship between these concepts which are stated in the facts of science. Such terms make up the vocabulary that the scientists use. If knowledge is to be organized, there must be some system imposed upon the facts which are observable. As a consequence, a major task in which science is the development of classification, a structure of concept, and an increasingly precise set of definition for these terms. सो ये जो चीज़ें हैं आप थेरी को कंसेप्चुलाइजेशन और क्लासिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट, उनके बारे में फैक्ट्स, उनके बारे में जो आइडियाज़ हैं उनको अपने दिमाग में लाइन करने के लिए भी थेरी को यूज़ करते हैं और थेरी बहुत ज़रूरी होती है। फिर ये है कि थेरी जो है वो चीज़ों को समराइज़ करने के अंदर उसका बहुत ज़्यादा रोल है। वो किस तरह से है कि आप जो है वो कंसाइजली आप उसको जो है वो a further task with theory performs is to summarize concisely what is already known about the object of study. जो कि ऑलरेडी आपको पता है उन सारी चीज़ों को समराइज करने के लिए भी थेरी का होना ज़रूरी है। These summaries may be divided into two main simple categories. एक empirical और generalization जिसके अंदर आपका अपना एक्सपीरियंस है उससे आप जनरलाइज करें इन चीज़ों को, और दूसरी चीज़ है सिस्टम्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपोजिशन के डिफरेंट जो प्रोपोजिशंस आपने प्रपोज किए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके अंदर क्या रिलेशनशिप है। Although scientists may think of this field as a complex structure of relationship, most of his daily work is concerned with prior tasks के empirical generalizations कर रहे होते हैं, डाटा के अंदर ऐड कर रहे होते हैं चीज़ें, empirical generalizations कर रहे होते हैं। So this is that. जो कोई डेमोग्राफी से रिलेटेड, नक्शों से रिलेटेड काम कर रहा होता है, बर्थ रेट्स को, डेथ रेट्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसके लिए भी थेरी का होना बहुत ज़रूरी है in order to quantify कि किस टाइम पे रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, किस टाइम पे रिप्रोडक्शन रेट कम है। These facts are useful in summarizing simple or complex theoretical relationship. As body of summarizing statements develop, it is possible to see relationship between these statements. Theorizing on a still larger scale, some may attempt to integrate the major empirical generalization of an era. From time to time, in any science, there will be changes in this. Theory is considered to be a very significant part in order to summarize all the significant information that is present.